बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। हमारे वीडियो लेक्चर की सीरीज़ का 5th नंबर ये लेक्चर है। आज का हमारा टॉपिक है डबल एंट्री अकाउंटिंग। डबल एंट्री के रूल्स क्या हैं, किस तरीके से डबल एंट्री, किस तरीके से ट्रांजैक्शंस अंडर द रूल ऑफ डबल एंट्री रिकॉर्डिंग होती है, आज हम इस वीडियो में ये करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज डबल एंट्री? डबल एंट्री बेसिकली डबल एंट्री बुक कीपिंग इज बेस्ड ऑन द सेम आइडिया एज अकाउंटिंग इक्वेशन। जिस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन को ब्रीफ डिफाइन किया था, इसी तरीके से डबल एंट्री बेस्ड अकाउंटिंग इक्वेशन पे करती है। सेम उसी तरीके से इक्वेशन के एक तरफ इंक्रीज होगा, दूसरी तरफ डिक्रीज होगा, दोनों तरफ इंक्रीज होंगे, जो भी इफेक्ट आएगा दोनों इक्वेशन के नेट इम्पैक्ट सेम होना चाहिए। Every transaction, every accounting transaction, every accounting activity has two equal but opposite effect. In in a system of double entry bookkeeping accounting, events must be entered in ledger account both as a debit and as a credit, equal but opposite side. Accounting book double entry system of bookkeeping means for every debit there is an equal credit, as shown in pictorial form. Every debit has equal credits. Double entry bookkeeping is a method by which a business records financial transactions as accountant is maintained for every assets, liabilities, capital, expense, and revenue. As accounting maintain everything, every pillar of the accounting. Also, every transaction is recorded twice so that every debit is balanced by the credit. What is debit? What is credit? Basically, debit credit, the term debit and credit only preparation of two columns, name of two columns. In fact, these are the name of two columns. The business events are posted in these columns as per accounting rules. But for entry in posting in these columns, there are predefined accounting rules. The left side of left column is always called debit and right column is always known as credit. Left is always known as debit. Left side is always known as debit side. Right side is always known as credit. Every transaction has two impacts, debit and credit. Debit and credit, these are only two columns. Left side is debit, right side is credit. There are predefined rules of debit entry and double entry. Now just recall basic elements of accounting. In lecture second and third lecture we defined what are the basic elements of the accounting. Basic elements of accounting are the ulcer. But today आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डेबिट क्रेडिट कौन सी चीज, अल्सर कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा। अल्सर एसेट्स में कौन सा पार्ट, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू, कौन सा पार्ट किस वक्त डेबिट होगा, किस वक्त क्रेडिट होगा। एलिमेंट्स एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू, इन शॉर्ट अल्सर। जब assets increase, whenever assets increase, it must be recorded in the debit side, debit column of the debit side of the account. Debit column, left column of every account is debit, and whenever assets, जब भी आपका कोई एसेट इंक्रीज होगा तो उस डेबिट साइड पे, लेफ्ट साइड पे रिकॉर्ड होगा। अगर एसेट डिक्रीज होगा, अगर आपका एसेट कम हो रहा है, किसी भी कंडीशन में एसेट कम हो रहा है,
तो आप उसको क्रेडिट पे रिकॉर्ड करेंगे। लायबिलिटीज जब डिक्रीज होंगी तो डेबिट होगा, इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट होगा। कैपिटल जब डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा, जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। रेवेन्यू इनकम जब डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी, जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। अब आपके पास बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग को हमने याद किया था, ALCER, अल्सर। अल्सर के अंदर जब भी अब बेसिक ये डेबिट क्रेडिट के रूल्स याद करने का सिंपल तरीका, सिंपलेस्ट मेथड, अल्सर के अंदर दो लेटर्स वावेल है, एसेट्स A and E, assets and expenses. Assets and expenses, whenever assets and expenses increases, record in debit side. Whenever assets and expenses decrease, record in credit side. All three items, liabilities, capital and revenue. Ulcer, liabilities, capital and revenue, reverse to the vowel letters. Whenever liabilities, capital and revenue increase, must be recorded in the credit side. When decrease, record in the debit side. अब आपके पास यहाँ पे क्लियर हुआ कि जो भी आपके पास अल्सर के 5 एलिमेंट्स हैं, अल्सर के 5 एलिमेंट्स हैं, 2 वावेल लेटर से 3 आपके पास कॉन्सोनेंट हैं। जो वावेल लेटर से एसेट्स एंड एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होंगे तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे, जब भी क्रेडिट होंगे तो क्रेडिट साइड पे, जब भी डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट साइड पे होंगे, जब इंक्रीज होंगे तो डेबिट साइड पे होंगे। लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होंगे क्रेडिट साइड पे होंगे, जब डिक्रीज होंगे डेबिट साइड पे होंगे। अब आपके पास यहाँ पे वॉवेल और कॉन्सोनेंट, अल्सर में एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, ये आपके पास रूल्स क्लियर हो गए। आई होप कि अंडरस्टैंड समझ में आ गए होंगे। अब हम इनको प्रैक्टिकली किस तरीके से क्वेश्चंस होंगे, किस तरीके से ट्रांजैक्शंस होंगे, किस तरीके से इवेंट्स होंगे, उनको हम डिफाइन करेंगे। अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई थी, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग। आगे हमने और स्टेप थे। अब आपके पास फर्स्ट पिक्चर में रिकॉर्डिंग प्रोसेस के अंदर फर्स्ट जो आइटम से एनालाइज ईच ट्रांजेक्शन, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्लियर हर ट्रांजेक्शन को एनालाइज कर रहे हैं कि क्या रिकॉर्डिंग, क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज है। सेकंड फेज रिकॉर्डिंग के अंदर, जर्नल के अंदर वो फर्स्ट 2 एंट्रीज को फर्स्ट जो एनालाइज किया है उसकी रिकॉर्डिंग के बारे में, उसके रिकॉर्डिंग किस तरीके से एंटर करेंगे रजिस्टर के अंदर, वो कर रहे हैं। थर्ड फेज है कि जर्नल से लेजर के अंदर ट्रांसफर करना। दिस इज जस्ट पिक्टोरियल फॉर्म। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, ब्रिंग द अटेंशन ऑफ व्यूअर्स ओवर की कॉन्सेप्ट्स यूजिंग द डबल एंट्री क्वेश्चन। अब आपके पास यहाँ पे अपना अटेंशन उस डेबिट क्रेडिट रूल्स को फॉलो करें, जो आपके डेबिट क्रेडिट रूल्स थे उनको बेस बनाते हुए, उनको याद करते हुए अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फॉर बिलो ट्रांजैक्शंस, वही ट्रांजैक्शन, वही क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस लेक्चर अकाउंट इक्वेशन में किया था। जनवरी 1st 2011 इन्वेस्टेड ₹900,000 कैश इन बिजनेस। अब एक एक ट्रांजैक्शन को अब हम डिफाइन करेंगे। एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग फेज, जनवरी 1st 2020 invested ₹900,000 cash in business। 900,000 रुपीज कैश बिजनेस के अंदर आया है। अब को ये एनालाइज करना है कि क्या अल्सर का कौन सा पार्ट है। इन्वेस्टमेंट मींस ऑनर्स, मालिक ने इन्वेस्टमेंट की है, मालिक ने जो इन्वेस्टमेंट की है उस इन्वेस्टमेंट को कैपिटल कहा जाता है। अल्सर में हर लेटर के अलग अलग नेचर नहीं है, जस्ट एक कौन से नेचर का पार्ट है। इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, कैश इज अ पार्ट ऑफ एसेट। बिजनेस के अंदर अल्सर के 2 पार्ट्स हैं। 900,000 जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कैपिटल है, और किस जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है कैश है। कैश कौन सा पार्ट है अल्सर का,
एसेट का पार्ट है। अब बिजनेस के अंदर जब आपके पास बिजनेस के अंदर जो ऑनर 9 लाख रुपए बिजनेस में लेकर आ रहा है, तो आपके पास बिजनेस के अंदर कैश इंक्रीज होगा। सेम उसी तरीके से ऑनर के पास, ऑनर की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो भी आपके पास इंक्रीज होगी। अगर न्यू स्टार्टेड बिजनेस है तो उसके अंदर पहले कैपिटल 0 होगा। अब इन्वेस्टमेंट के बाद 9 लाख रुपीज होगा, तो 0 to 900 इट मीन्स के कैपिटल आपका इंक्रीज हुआ। सेम आपके पास आपका कैश जो है वो भी इंक्रीज हुआ। अब एक तरफ आपका एसेट इंक्रीज हुआ, दूसरी तरफ आपका कैपिटल इंक्रीज हुआ। एसेट का नाम क्या था? कैश। अब आप इंक्रीज क्या करेंगे? जब के एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है, जब कैपिटल इंक्रीज होता है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो अब आप सिंपल एंट्री बनाएंगे। जनरल का फॉर्मेट गिवन है, डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट क्या होगा? एसेट। कौन सा एसेट? कैश। क्रेडिट क्या होगा? कैपिटल। कैपिटल क्रेडिट होगा, कैश डेबिट होगा, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। दिस इज जस्ट एंट्री, जस्ट रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट, on January 4, 2020 परचेज फर्नीचर फॉर ₹50,000 कैश। अब परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीद रहे हैं। फर्नीचर खरीदने से अगर ऑलरेडी आपके पास फर्नीचर है, जितना है ऑलरेडी है, अगर आप और परचेज कर रहे हैं इट मीन आपके पास फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज होगी। किस बेसिस पे आप परचेज कर रहे हैं? किस बेसिस पे आप फर्नीचर पे कर रहे हैं? आप रिसीव कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उसके बदले आपने कैश पे किया है। कैश जब पे करते हैं तो कैश आपका डिक्रीज होगा। अब आप इसकी नेचर देखें, फर्नीचर की नेचर क्या है? एसेट्स। खरीदने से आपके एसेट्स इंक्रीज हुए। कौन से एसेट इंक्रीज हुए? एसेट का नाम क्या है? फर्नीचर। अब क्यों आपने खरीदे, क्यों आपको फर्नीचर मिला? क्योंकि आपने उसके बदले कैश दिया है। कैश की नेचर क्या है? एसेट्स। पे करने से आपका कैश कम होगा। अब आप देख लें, एक एसेट इंक्रीज हुआ है, दूसरा एसेट आपका डिक्रीज हुआ है। अब एक एसेट इंक्रीज हुआ है, दूसरा एसेट आपका डिक्रीज हुआ है। एसेट जो इंक्रीज हुआ है इसका नाम क्या है? फर्नीचर। जो डिक्रीज हुआ है इसका नाम क्या है? कैश। अब इसकी एंट्री क्या होगी? जो इंक्रीज हुआ है वो डेबिट होगा, जो डिक्रीज हुआ है क्रेडिट होगा। एसेट एक इंक्रीज हुआ, कौन सा एसेट इंक्रीज हुआ? फर्नीचर। कौन सा एसेट डिक्रीज हुआ? कैश। जो फर्नीचर इंक्रीज हुआ उसको डेबिट में रिकॉर्ड कर दें, जो डिक्रीज हुआ उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दें। थर्ड ट्रांजेक्शन, ऑन 8 जनवरी 2020 परचेज मर्चेंडाइज फॉर ₹15,000 ऑन अकाउंट। 15,000 रुपए की आपने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, वो आइटम परचेज किए जो आपको सेल करने। कितने का परचेज किए? 15,000 रुपए के। उसके बदले आपने कुछ पेमेंट किए? नहीं, वो उसके बदले आपने उधार पे परचेज किया है। अब आपकी लाइबिलिटी है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको पे करें। इसकी रिकॉर्डिंग किस तरीके से होगी? अब मर्चेंडाइज की इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज की नेचर क्या है? एसेट। ऑन अकाउंट का मकसद उधार पे आपने क्रेडिट पे परचेज किया है। अब इस क्रेडिट को परचेज पे जब परचेज करेंगे तो आपको पास मर्चेंडाइज का अमाउंट भी इंक्रीज होगा, सेम टू सेम आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, आप उसको पे करें। अब आपके मर्चेंडाइज और इन्वेंट्री दोनों को रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास जो एंट्री बनेगी, मर्चेंडाइज एसेट आपका इंक्रीज हुआ, एसेट मर्चेंडाइज को आप इन्वेंट्री भी कह सकते हैं, परचेज अकाउंट भी कह सकते हैं। अब जब मर्चेंडाइज इंक्रीज हुआ, डेबिट साइड, मर्चेंडाइज की नेचर क्या है? एसेट। ऑन अकाउंट आपकी लायबिलिटी है, आप अकाउंट जो ऑन अकाउंट आप परचेज करते हैं आपको पे करना है, अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल का है 50,000, 15,000। तो आप क्या एंट्री पास करेंगे? क्या एंट्री पास करेंगे? इन्वेंट्री डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री, परचेज इक्विपमेंट। सेम चीज, आप उस पे इन्वेंट्री परचेज कर रहे थे तो आपके पास क्या अमाउंट था, क्या चीज थी? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आपके पास एसेट, एसेट मगर आप रीसेल के लिए परचेज कर रहे थे। अब यहाँ के अंदर आप इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं, इक्विपमेंट की क्या नेचर है? एसेट। कौन सा एसेट? नॉन करंट एसेट्स। एसेट परचेज कर रहे हैं, ऑन अकाउंट परचेज कर रहे हैं, सेम चीज आपके पास उधार है, आपने आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी लायबिलिटी, आप उसको पे करें। एसेट इंक्रीज हुआ और सेम चीज आपके पास लायबिलिटीज आपकी इंक्रीज हुई। एसेट इंक्रीज, कौन सा एसेट? एसेट का नाम क्या है? ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट।
नेक्स्ट एंट्री है ऑन 20 जनवरी 2020 पेमेंट टू सप्लायर अगेंस्ट परचेज ऑफ मर्चेंडाइज। जो आपने इन्वेंट्री परचेज की थी 15,000 रुपए की, उधार में परचेज की थी, उस वक्त आपकी लाइबिलिटी थी। अब आपने सर्टेन टाइम के बाद, कुछ दिन के बाद आपने उसको पे कर दिया। जब आप पे करेंगे तो आपके पास क्या होगा, पेमेंट करेंगे तो आपके पास कैश अमाउंट कम होगा। किस किस बेसिस पे परचेज कर रहे हैं, किस बेसिस पे पे कर रहे हैं? जो आपने सप्लायर से मर्चेंडाइज परचेज की थी, आपने उधार में परचेज की थी, आपकी लाइबिलिटी थी सप्लायर को पे करना, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी आप उस वेंडर को पे करें। अब वो आपकी लाइबिलिटी कंप्लीट हो गई, आपने पैसे दे दिए, आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई और आपके पास एसेट्स भी डिक्रीज हो गए। एसेट डिक्रीज हुआ, कौन सा एसेट डिक्रीज हुआ? कैश। जब एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। सेम आपके पास लाइबिलिटी भी डिक्रीज हुई है, जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट। यही जब आप इंक्रीज हुई थी तो आपने क्रेडिट किया था, अब आपने डेबिट कर दिया। सेम चीज। अब नेक्स्ट एंट्री थोड़ी सी लॉजिकल है। ऑन जनवरी 21st 2020 गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5,000 रुपीज सोल्ड फॉर कैश 12,000। अब इस एंट्री को हम दो पीसेस में, दो पार्ट के अंदर हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। इस एंट्री को हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5,000 एक एंट्री ये करेंगे। सेकंड चीज सोल्ड फॉर कैश। अब गुड्स की नेचर क्या है? एसेट। कॉस्टिंग मीन एक्सपेंसेस। किसी भी चीज को आप परचेज करें उसके लिए जो परचेजिंग प्राइस है वो आपके लिए कॉस्ट है, कॉस्ट आपका एक्सपेंस है। सोल्ड आपका रेवेन्यू का पार्ट है, सेल्स का सेकंड फॉर्म है। सोल्ड आपके पास रेवेन्यू का पार्ट है। अब सेकंड चीज कैश, कितने कैश में आपने सेल किया है? 12,000 रुपए। 12,000 आपने जो कैश परचेज किया है, कैश जो है आपके पास एसेट्स है। अब हम इसकी दो एंट्रीज को फोकस करेंगे। सेल्स क्या है? रेवेन्यू। सेल्स क्या है? रेवेन्यू। कैश क्या है? एसेट्स। आपके पास एसेट, कैश आपने सोल्ड किया है। अब आप जब सेल करते हैं, आपके अपने कस्टमर से पैसे लिए तो आपका कैश इंक्रीज हुआ। कैश इंक्रीज हुआ और क्यों इंक्रीज हुआ? क्यों आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू आपका इंक्रीज हुआ अल्सर का पार्ट, और एसेट भी इंक्रीज हुआ। अब एसेट जब इंक्रीज हुआ, एसेट कौन सा एसेट? कैश अकाउंट, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अब आते हैं हम पहले वाले पार्ट पे। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5,000। जो आपने सेल्स की है उसकी वैल्यू कितनी है? 5,000। कॉस्टिंग क्या है? एक्सपेंसेस। गुड्स क्या है? एसेट्स। कितना अमाउंट है? 5,000 रुपीज। एसेट्स आपके डिक्रीज हुए, कौन से एसेट डिक्रीज हुए? इन्वेंट्री, जो मर्चेंडाइज आपने परचेज की थी। अब जो एक्सपेंस आपने, जिस एक्सपेंस के ब्याह पे वो आपने इन्वेंट्री दी है, उसको एक्सपेंस हो गए कॉस्ट ऑफ सेल्स। इन्वेंट्री क्या होगी? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट नेक्स्ट एंट्री है ऑन जनवरी 23rd 2020 विड्रॉ कैश बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर ने कैश विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज। कितना अमाउंट? 20,000 रुपीज। क्या विड्रॉ किया? कैश। कैश की नेचर क्या है? एसिड। अब एसिड के ब्याह पे आपने किसके ब्याह पे परचेज किया है? ड्राइंग। अब ऑनर ने अगर अपने लिए पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले तो उसको कहेंगे ड्राइंग। अब ऑनर ने 20,000 रुपीज कैश निकाला है। कैश क्या चीज है? एसेट। एसेट आपका कम हो गया। अब जो पैसे निकाले उसको कहते हैं अकाउंटिंग में ड्राइंग। ड्राइंग इज अ कंट्रा कैपिटल। जो ऑनर ने पैसा लगाया उसको कैपिटल कहते हैं, जो ऑनर ने पैसा निकाला उसको ड्राइंग कहते हैं। अब इसकी ड्राइंग आपका इंक्रीज होगा, सेम 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 तरीके से आपके पास एसेट आपका डिक्रीज होगा। अब इसकी एंट्री क्या होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अब आपके पास कंट्रा एसेट, कंट्रा कैपिटल। कंट्रा कैपिटल का मकसद जो कैपिटल में डेबिट क्रेडिट था उसको रिवर्स में होगा। या अगर हम ये कहें ड्राइंग से आपका कैपिटल कम हुआ, कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट। अब उसी को डेबिट करने के लिए ड्राइंग आपको इंक्रीज हुई है, मगर कंट्रा कैपिटल के हिसाब से, कंट्रा कैपिटल के लॉजिक से आप क्या कहेंगे? ड्राइंग को डेबिट करेंगे। और कैश आपका गया है तो कैश आपका डिक्रीज होगा। ये आपके पास, ये आज आपका टोटल टॉपिक था। थैंक्स फॉर watching, thanks for, hope
I clear your all concept regarding basic double entry system. अब अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज हैं, प्लीज राइट इन कमेंट्स एंड रिव्यू. If you are satisfied, please like and share your friends and family. Thank you. See you soon with new topics.